Anyone can say this is bouncing back of light ray, है ना? The bouncing back of light ray is known as reflection of light, है ना? And what are the types of reflection? What are the types of reflection? There are two types of reflection, that is regular and irregular. The irregular reflection is also known as diffused reflection, है ना? उसको हम लोग diffused reflection के नाम से भी जानते हैं, है ना? Now I am going to show you that how this irregular reflection and regular reflection takes place in our day-to-day life. Can you say what is the condition for the reflection? अनुश्री बताओ. Polished surface, है ना? As the wall is opaque, है ना? There is a source of light, that is laser. All of you are familiar with this laser, है ना? And it is a source of light for us in this situation, है ना? And I am incidenting a light ray, है ना, on the wall of your classroom. That is, either it is reflecting or not. No, it is not reflecting. Shut the door, please. It is not reflecting. Then what we can call it? This is irregular reflection, है ना? The surface is hard, opaque, but the surface is not polished. That's why the reflection is not taking place, है ना? The reflection that takes place there, that is irregular reflection, है ना? वो कैसा एक reflection है? Irregular reflection. Now, as we know that the surface should be polished for the reflection of light. For a polished surface, I have a plane mirror. As we know that a plane mirror reflects very nicely or very smoothly, है ना? ये जो है एक प्लेन मिरर है. दिस इज़ हाईली पॉलिश्ड सरफेस और यहाँ से रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होता है ना? और हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्शन को अभी देखने वाले हैं, है ना? नाउ आई एम पुटिंग दिस and incidenting the light ray here on the plane of that mirror, and now you can see the reflection of the incidenting light ray, है ना? You can see the reflection of this incidenting light ray, है ना? So this is the condition for reflection, and in this polished surface reflection took place, है ना? Now the question is what? We study about the laws of reflection. What are the laws of reflection? Can anyone see? One by one. You have to say one by one. Don't create noise. You have to say one by one. You, Anusri, say. Yes. Angle of incidence is equal to angle of refraction. Yes. Means she is saying that the incident, point of incidence, point of normal and the point of reflection, these all lie at the same plane, है ना? And the second is the angle of reflection is equals to angle of incidence, है ना? Now we are here to demonstrate that the three point of incidence, point of normal and the point of reflection, these all lie at the same plane, है ना? देखो यहाँ पे वो दिखेगा कैसे? I am incidenting this light ray on the plane of this mirror, है ना? And the light reflects after striking that plane surface, है ना? Assume there is a normal on the plane of this mirror, है ना? So through this you can understand that these 3 point lies at the same plane, है ना? यहाँ पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट रे को, तो वहीं से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना?
उसी प्लेन से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, कहीं और से तो नहीं। देखो अभी यहाँ पे हम लाइट डाले, ठीक है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं दूसरे प्लेन से हो रहा है क्या? यहाँ से कहीं और से नहीं हो रहा है ना, वहीं से हो रहा है ना। और जो नॉर्मल होगा वो इसी प्लेन पर होगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस ऑल 3 पॉइंट्स लाइज एट द सेम प्लेन, है ना। नाउ यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल I will be equals to एंगल R, है ना। Assume there is a normal on the plane of this mirror, है ना, and the angle between the normal and the incident light ray and the angle between a refracted ray and the normal will be equal to each other, है ना। As I am changing the incident angle, the reflected angle is also changing, है ना। देखो यहाँ से, है ना, चेंज हो रहा है ना। इसको हम इस तरह डालें, ठीक है, अभी जैसे दूर दूर ले जा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं एंगल को, तो देखो रिफ्लेक्शन वाला बड़ा हो रहा है ना, ठीक है। तो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ इन द रिफ्लेक्शन चैप्टर वी स्टडी अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। इन द रिफ्लेक्शन चैप्टर वी हैव 2 मिरर्स, है ना, 2 मिरर्स है हम लोगों के पास रिफ्लेक्शन चैप्टर में, है ना। और वो मिरर कौन कौन सा है बताओ? कनकेव एंड कन्वेक्स। बट द क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश these 2 type of mirrors? Going to tell you that how can we distinguish these 2 type of mirrors, है ना। As we know that convex mirror always form a diminished image no matter where the object is placed, है ना। This is a convex mirror and you can see the image of your whole classroom is forming at this small mirror, है ना। देखो इस मिरर का साइज कितना छोटा है, तुम लोग जितना सबको है, किसी का साइज इतना छोटा नहीं है, सब इससे बड़ा है कि नहीं? किसी का मेजरमेंट इतना तो नहीं होगा, है ना, सब इससे बड़ा है, लेकिन फिर भी ये इमेज बना दे रहा है ना। कन्वेक्स मिरर डिस्टिंग्विश कनकेव मिरर, द क्वेश्चन इज दैट if we put the object in between focus and the pole of a concave mirror, the image is formed magnified, है ना। The focal length of this mirror is 15 centimeter, है ना। So if we will put the object in between 15 centimeter from this mirror, a virtual erect and magnified image will be formed, है ना। हम लोग जैसे ही फोकस और पोल के बीच में अपने चेहरे को लाएंगे, है ना, तो वहाँ पर एक इमेज बनेगा, किस टाइप का? बड़ा, है ना। और इसमें कैसा बनेगा? पूरा चेहरे का इमेज बन जाएगा, इसमें पूरा चेहरे का इमेज बन जाएगा, है ना। इसमें क्या बनेगा? एक किसी पार्ट का बनेगा, है ना। इसीलिए इस मिरर को एक मेकअप किट में यूज़ किया जाता है और इसको सेविंग मिरर्स के नाम से भी जाना जाता है ना। दैट्स वाई, ठीक है। अगर मान लो वी हैव टू ऑब्जर्व द इमेज फॉर्मेशन इन बोथ द केसेस ऑफ मिरर, है ना। 1 by 1 वी विल ऑब्जर्व द इमेज फॉर्मेशन in case of concave mirror or in case of convex mirror. Now this is the turn of a concave mirror, है ना। रियल इमेज को हम लोग हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं, है ना, वो मिरर पे नहीं बनता है, ठीक है। तो उसके लिए ये स्क्रीन है हमारे पास, दिस इज द मिरर, दिस इज द मिरर होल्डर एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट एज अ कैंडल, है ना। एंड दिस पॉइंट्स आर द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द फोकस ऑफ द मिरर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अंडरस्टूड? किसी के पास कोई क्वेश्चन? इन्फिनिटी में ना, भीड़ का हिस्सा बन गई वो भी, चलो रख दो इन्फिनिटी में, रख दो, तुम्ही को रखना है, इसीलिए तो तुमसे पूछे। हाँ इन्फिनिटी में रख दो, ठीक है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में अगर हो तो इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे, है ना। और इमेज होगा रियल, है ना। ये देखो फिजिक्स के साथ मर्डर कर रहा है ना। अब जो है ये स्क्रीन है हम लोग का, है ना। तो यहाँ यू कैन सी द इमेज विच इज फॉर्म्ड एट फोकस
and the nature of the image is what? Diminished. The nature of the image is what? Diminished. है ना? Real and inverted, and it is highly diminished in nature. है ना? Infinity वाला केस का है ना? Now we have to put the object at where? Beyond center. हाँ? Beyond the center, है ना? Now put the object beyond center of curvature, that is C. इसका नाम ममता, उसका नाम शुभांगी. हाँ, beyond C. ये लड़की को पता नहीं है. ठीक है? Now where will be the object, means image will be formed between C and F. Now you can see the image which is forming between C and F. हाँ, इमेज कहाँ बनेगा? स्क्रीन को लगाओ. थोड़ा सा हाँ, उस तरह रखा जा सकता है ना? अरे उबड़ खाबड़ है ना ये बेंच डेस्क यहाँ पे, ऐसा टाइप का. जलेगा. ठीक है? Now you can see the image, है ना? किसको किसको नहीं दिखा? हटा दो उसको, अब जल रहा है तो. हाँ, ऑब्जेक्ट के प्लेस को हम लोग चेंज करेंगे और उसको ले आएंगे कहाँ? बिटवीन सी एंड एफ. कहाँ पे बनेगा इमेज? बियॉन्ड सी, है ना? चलो रखो ऑब्जेक्ट को. हाँ, अनुसरी को दे दो. अब उसको डिसाइड करना है बियॉन्ड सी कौन सा है ना? बना ही नहीं. उधर थोड़ा करो और, हाँ, है ना? मैग्नीफाइड इमेज भी दिख रहा है ना? और बैक कर. हाँ, ठीक है, ठीक है. नहीं, ठीक है, वही पोजीशन ठीक था. है ना? देखो दिख रहा? ऑब्जेक्ट एट फोकस. नाउ वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड. अब इन्फिनिटी में देखो, उधर बन रहा होगा कहीं, दीवार वगैरह में देखो. स्क्रीन को हटा दो. हाँ, देखो उस टाइप का कुछ, वो में हाईली मैग्नीफाइड है ना? एफ और पी के बीच में रखेंगे जब ऑब्जेक्ट को, तो वही मेकअप किट वाला कंडीशन आ गया, है ना? देखो कोई है फॉर्मेशन इन केस ऑफ पोल एंड फोकस, है ना? और इमेज का साइज मैग्नीफाइड होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, है ना? दिस इज द एक्सेप्शनल केस इन केस ऑफ कनकेव मिरर. और एग्जाम में यही आता है ना? बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इमेज फॉर्मेशन का कनकेव मिरर, है ना? देखना है. और इसमें हम लोग दो केस देखते हैं, है ना? दो केस इमेज फॉर्मेशन का, और वो क्या है? इन्फिनिटी और पोल और इन्फिनिटी के बीच में. इसमें जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश्ड बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, और फिर बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना? तो अब इसको यहाँ लगा दिए. ठीक है, स्क्रीन को इधर ले आओ. अब पार्टी चेंज. ठीक है ना? दो में जो है हम लोग को क्या क्या है? इन्फिनिटी और पोल के बीच में एक, और एक इन्फिनिटी में. दोनों केस में डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना? अभी जो है इस ऑब्जेक्ट का प्लेस रखो जी इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखो. मुस्कान, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखो. कहाँ पे रखेगी? तुम लोग क्यों बताई? जो इमेज बन रहा होगा वो बिहाइंड द मिरर पोल और फोकस के बीच में मिल रहा होगा, यहाँ पे कहीं देखो, है ना? और डिमिनिश्ड इमेज बनना होगा, है ना? है ना? मेरे हाथ के मिस दूरी में दिख रहा होगा इमेज. अच्छे से देखो, हर एंगल में नहीं दिखेगा.
ये इसका नाम तो जान गए, इसका भी नाम जान गए, तुम लोग दोनों का नाम पहले तो जानते हैं मेरा स्मिता है ना, स्मिता। नो मैटर हाउ आई एम इंसिडेंटिंग द लाइट रे बट द लाइट इज ऑलवेज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। है ना, ये तुम लोगों को दिख गया सबको, है ना। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पे देखो इस कंटेनर में वाटर है, बोतल में, है ना, और यहाँ पे लाइट को हम इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये बेंडिंग तुम लोगों को दिख रहा होगा, है ना, है ना। यहाँ देखो, है ना, ये रुक जाओ, ये देखो, है ना, दिस इज द इमर्जेंट रे, है ना, इमर्जेंट रे है वो जो निकला उधर से, और यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना, ठीक है। दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम विच वी कैन अंडरस्टैंड द रिफ्रैक्शन फिनोमिनन ऑफ लाइट। पहचान कैसे सकते हैं, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश, है ना। ये कनकेव लेंस जो होगा उसमें हमेशा एक डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, है ना, और ये कन्वेक्स लेंस जो होगा उसमें जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमको एक मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कनकेव लेंस को लगाते हैं, है ना, और इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। जैसा कि इसमें हम लोग दो केस देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का, है ना। उसमें बड़ा वाला कैंडल लगाओ, हाँ वो वाला कैंडल लगा दो उसमें। अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन दो कंडीशन का है, एक इन्फिनिटी पे और एक ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच का, है ना। तो एक कंडीशन में जो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड द लेंस बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज वो फोकस पे बनेगा, सबको पता है। तो नाउ यू एवरीवन कैन सी द इमेज फ्रॉम दैट साइड, है ना। बड़ा हो गया बस थोड़ा और 1 घंटे पहले एक क्लास है ना। और दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड दिस इज 2F, है ना। उधर भी उसी तरह है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, उसके बाद फिर उधर क्या है 2F, है ना। अब वो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, सबसे पहले बताओ। इन्फिनिटी पे रखते हैं, है ना, इन्फिनिटी पे रखो उसको, है ना। अब जो इमेज हम लोगों का बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, है ना, पॉइंट साइज, ठीक है ना। इमेज बन गया फोकस पे जो कि हाईली डिमिनिश्ड है और रियल एंड इन्वर्टेड है। चेंज करो पोजीशन को, बियॉन्ड 2F। अब कहाँ बनेगा इमेज, हाँ रख दो वहीं पे, कहाँ पे रख, अब इमेज कहाँ बनेगा, अब इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन F एंड 2F, है ना। ये देखो इमेज, ठीक है। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होगा, है ना, है 2F, है ना। अब जो इमेज मिलेगा हमको कहाँ मिलेगा, 2F पर मिलेगा और वो सेम साइज का इमेज होगा, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें रखेंगे और इमेज जो मिलेगा हमको कहाँ मिलेगा, बियॉन्ड 2F। ये कैंडल बड़ा हो गया, इमेज स्क्रीन को और नीचे ले जाना होगा, है ना। स्टेन हटा दीजिए पूरा, खोल दीजिए, ठीक है, बन रहा इमेज, है ना। देखो तो
हाँ बैग लगाओ जी वहाँ पे। बैग लगाओ। ऊपर में बन रहा है, ऊपर में। हाँ वहीं। ऐसे दिख रहा है। ठीक है, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो इमेज बनेगा वो इधर से देखना होगा और वो एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना।